Good morning, students. Good morning to all of you. I hope that everyone is listening me. I am audible to everyone. So, all of you know that we are studying the sound of music chapter, which has two parts. Part one we have completed Evelyn Glennie's success of learning music. Now we are going to the next part. Next part basically we'll see the information of the lecture 19th May class 9th English Behive. We are studying the lesson number 2, right? And we are doing the sound of music. Deborah Colley, and this is second part we are going to study students today, and this is the first lecture. I hope it's clear to everyone. Let's go ahead. This now. Shehnai, the Shehnai of Bismillah Khan basically. Before you read, let's see. Do you know these people? What instruments do they play? बच्चों आपसे ये पूछा जा रहा है by the author, क्या आपको पता है ये जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो प्ले कर रहे हैं, who are they basically? कौन है basically ये? What are they doing? What instruments are they playing? कौन कौन से instruments ये play कर रहे हैं? What we need to see. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ये प्ले कर रहे हैं? The author is asking to you this basically. Author आपसे ये बात पूछना चाह रहा है. Author is asking you this. Now, what we need to see basically, we need to see. Think of the Shehnai, and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Author is telling us like अगर आप कभी भी शहनाई के बारे में सोचते हो और फर्स्ट थिंग शायद प्रोबेबली वो कहता है आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, वेडिंग, शादी की बात आएगी, और सिमिलर ओकेजन या फिर उस जैसा कोई ओकेजन जिसको लेकर के बातें की जाती हैं, या फिर कोई फंक्शन जिसमें शहनाई को यूज किया जाता है. द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्त्रियो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट. What we are going to study further, students, we are going to study about उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि शहनाई वादक थे, मास्टर थे उसके शहनाई के. एम्परर Aurangzeb banned the playing of a musical instrument. Now we are starting with the first, students, and what we find, जो एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने बैन कर दिया था playing of a musical instrument called in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Now you see, students, औरंगजेब ने जो है इसको बंद कर दिया. बंद करने के बाद जो है उसने क्या रीजन दिया, that in the royal residence, for it had a shrill means तेज, बड़ा तेज, unpleasant, बड़ा नाखुश क्रिएट करने वाला साउंड जो है ये पुंगी क्रिएट करती थी. पुंगी became the generic name for reeded noise maker. Generic name means a name given to a class or group as whole. किसी को एक नाम दे दिया जाता है जो इस तरह से कोई भी नॉइस क्रिएट करता है. For reeded noise maker, reeded means वो बेसिकली कहता है wind instrument, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हवा से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, which have reeds like the flute, the clarinet, basically basics like these types of instruments of music. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ने क्या सोचा कि भाई एक दिन जो है ये क्या हो जाएगा, एक दिन इसको रिवाइव कर दिया जाएगा. रिवाइव मीन्स सही बना दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा. फ्यू हैड, कुछ ने, नाम मात्र, फ्यू मीन्स नाम मात्र कुछ लोगों ने ये सोचा कि इसको रिवाइव कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, रिवाइव कर दिया जाएगा. A barber of a family of professional musicians. बार्बर एक नाई जो थे, प्रोफेशनल थे म्यूजिक्स में, म्यूजिशियन थे वो, who had access
to the royal palace, जिनके पास परमिशन थी रॉयल पैलेस में जाने की, राजा के किंग के यहाँ जाने की, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वुड चेंज और ट्राई टू चेंज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि वो इस पुंगी की क्वालिटी को चेंज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम. उन्होंने एक पाइप को चूज किया, ढूंढा, जिसमें एक होलो स्टेम, होलो मीन्स होल, एम्प्टी स्पेस, यानी कि जैसे कि अगर आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे बांस जो होता है उसमें अंदर स्पेस होता है, दैट्स कॉल्ड होलो स्पेस, होलो स्टेम जिसको हम बोलते हैं. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि थोड़ा सा तो लेंथी था, लंबा था, और थोड़ा सा चौड़ा था, मोटा था, ब्रॉडर देन पुंगी, पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप की बॉडी के ऊपर, इस पर जो है उसने 7 होल्स बनाए. ही मेड 7 होल्स, he created 7 holes on this pipe. When he played on it, और जब उसने इसको प्ले किया, closing and opening some of these holes, कुछ होल्स को क्लोज किया with the fingers, कुछ को ओपन किया. Soft and melodious sounds were, सॉफ्ट और मेलोडियस, बड़ा सुनने में अच्छा लगने वाला साउंड जो था वो कहता है प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस्ड. इसको फिंगर्स के साथ कुछ होल्स को ओपन करना, कुछ को क्लोज करना, जिससे जो है ये साउंड प्रोड्यूस हुआ, क्रिएट हुआ. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो पुंगीज एंड दिस शहनाई, हाउ दिस बेसिकली. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने जो है इसको रॉयल्टी के सामने, रॉयल पीपल मीन्स किंग, किंग्स के सामने प्ले किया, रॉयल लोगों के सामने. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, and those people who were sitting there listening this, they were impressed by the sound. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name, and this was decided कि भी जो ये न्यू इंस्ट्रूमेंट है बड़ा डिफरेंट है, और इसको पुंगी की तरह ये साउंड क्रिएट कर रहा है, इवन बेटर, गुड, इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेस्ड. इट हैड टू बी गिवन अ नेम, और इसे जो है एक नेम देना है कि व्हाट शुड बी इट्स नेम. सो द स्टोरी, एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे स्टोरी के बारे में पता चलता है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, शाह मीन्स द रॉयल पीपल, बेसिकली चिल्ड्रन, कि भी दिस वाज प्लेड इन द रॉयल पीपल, इन हिंदी वी कॉल शाह's चैम्बर, कि उनके कोर्ट में, उनके दरबार में इसको बजाया गया. एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा इसे प्ले किया गया. वी कॉल इन इंग्लिश बार्बर दैट, कि इंग्लिश में हम इसको बार्बर बोलते हैं. शाह के चैम्बर में इसको बजाया गया, एंड प्लेड बाय द नाई, नाई के द्वारा इसे बजाया गया. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम था वो क्या था, शहनाई था. शाह से शहनाई, शाह के प्रांगण में, शाह के चैम्बर में, दरबार में इसको बजाया गया और नाई के द्वारा, देन इट गॉट द नेम शहनाई बेसिकली. So we understood how it got its name. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. Dear children, auspicious means it is given promising to bring good fortune. शुभ शगुन जिसको माना जाता है, that's called auspicious. And इसको शहनाई को जो है शुभ शगुन का कारक माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और एक यही रीजन था जिसकी वजह से जो है इसको टेम्पल्स में प्ले किया जाने लगा. स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, आज भी जो है टेम्पल्स में इसको बजाया जाता है, प्ले किया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. Indispensable means without which a piece of work cannot be done. जिसके बगैर कि किसी काम का पूरा होना संभव नहीं है, नहीं माना जाता उस काम को अच्छे से पूरा जब तक कि जहां पर शहनाई नहीं बजती है. इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात करते हैं, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इज ensemble of 9 instruments found at royal courts. अगर हम शहनाई की बात करें पास्ट में, नौबत और ट्रेडिशनल, बेसिकली वो कहता है ensemble means, वो कहता है pronounced ensemble things here, instruments considered as a group.
जब ग्रुप के अंदर चीजों को लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है इन द रॉयल कोर्ट्स, राजा के दरबार के अंदर बेसिकली 9 वो बताता है इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये शहनाई उनमें शामिल हो गई थी पास्ट में बेसिकली। Till recently it was used only in temples and weddings. या तो ये टेम्पल्स में यूज हुआ करती थी या फिर वेडिंग्स में यूज हुआ करती थी, शादियों में यूज होती थी। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. और क्रेडिट जो है फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आगे लेके आने के लिए, क्लासिकल स्टेज के ऊपर इसको लेकर के आने के लिए किसी एक को क्रेडिट जाता है। और वो कौन है जिसे इसको आगे लेकर आने के लिए इतना क्रेडिट जाता है? दैट वन इज द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो है दिस इंस्ट्रूमेंट शहनाई को जो है क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल म्यूजिक्स में ला करके खड़ा कर दिया था, इवन प्रूव्ड इट बेटर। लेट्स सी, as a 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumraon in Bihar. Now narrator is telling us something about Bismillah Khan from the very early age. जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खिला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव। दुमराव इज द नेम ऑफ द स्टेट जो कि बिहार के अंदर था। वहां पर जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे, रहते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Cheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. अब ये क्या करते थे, रेगुलरली जो है जाया करते थे नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी के टेम्पल में ये हर रोज जाया करते थे वहां पर, और वहां पर ये क्या किया करते थे, टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चेता, इट्स अ टाइप ऑफ सॉन्ग इन भोजपुरी। ये वहां पर जो है भजन गाया करते थे, सॉन्ग गाया करते थे, एट द एंड ऑफ विच, और जिसके बाद में जो है क्या होता था, उनको जो है एक लड्डू मिलता था। लड्डू जो मिलता था वेइंग ऑफ 1.25 kg, और ये जो है 1.25 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 1.25 किलो, इन्हें जो है एक 1.25 किलो का लड्डू मिलता था एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जो वहां के लोकल महाराजा होते थे उनके द्वारा जो है इन्हें ये लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये सब 80 साल पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, और जो लिटिल बॉय है, जो छोटा बच्चा था, वो उस समय बहुत ही लंबी यात्रा, ट्रेवल बहुत ही लंबा, फार लंबी यात्रा, बड़ी दूर की यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा है। अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उसने इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉप अवार्ड जो होता है इंडिया के अंदर, द भारत रत्न, द भारत रत्न जो था वो अचीव किया, गेट किया अपनी लाइफ में। Now you see how he started children, how he earned the things in his life. Now let's see from starting what author talks to us based on the Bismillah Khan's life. Born on 21st March, बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म था 21 मार्च 1916 1916 में हुआ। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खान जो है वेल नोन फैमिली, जिनकी फैमिली को बहुत पीपल जानते हैं, नोन है, फेमस है, म्यूजिशियंस हैं फ्रॉम बिहार, जो बिहार से हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, जो इसके ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर के जो किंग थे उनकी कोर्ट में जो है म्यूजिशियन थे, वहां पर शहनाई बजाया करते थे। ये जो रसूल बख्श खान जो ग्रैंडफादर थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के, हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर्स, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। जो ऑल जो है सभी के सभी जो है सारे के सारे जो है शहनाई प्लेयर थे, जो अच्छे से
शहनाई प्ले करना जानते थे. So what we understand about this, that Bismillah Khan belonged to the family of musicians. Father, grandfather, great grandfathers, all were शहनाई players, जो कि शहनाई बजाया करते थे, शहनाई को play किया करते थे. So students, let's go to next. The young boy took to music early in life. Now, children, what we find basically, the young boy took to music early in life. बड़ी जल्दी लाइफ में, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में ही जो है उसने म्यूजिक को सीखना शुरू कर दिया था. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. 3 साल की उम्र में जब उसकी मदर उसको उसके मेटरनल अंकल के घर लेकर के आती है बनारस, नाउ वाराणसी, जिसको जो है हम वाराणसी बोलते हैं, राइट. वहां पर वो लेकर के आती है उनको. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस. बिस्मिल्लाह खान जो है बड़ा फैसिनेट मींस मोहित होता है अपने अंकल की प्रैक्टिस को देख करके. When he saw his uncle practicing playing musical instruments, he was fascinated. मोहित हो जाता है उसको देख करके. Watching his uncle's practice the शहनाई, जब वो देखता कि उसके अंकल शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, बजाते थे, उसको प्ले करते थे, so he got fascinated means वो बड़ा मोहित होता था देख करके. Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने जो है अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया, accompany करना शुरू कर दिया. His uncle Ali Bugs, whose name was Ali Bugs, to the Vishnu temple of Banaras. विष्णु का जो टेम्पल है, भगवान श्री विष्णु के टेम्पल में उसने बनारस में जाना शुरू कर दिया विद हिज अंकल अली बक्स. बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और बक्स को जो है वहां पर शहनाई प्ले करने के लिए अपॉइंट किया गया था. ही वाज अपॉइंटेड देयर टू प्ले शहनाई. Ali Bucks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Now what we find, Ali Bucks would play the Shehnai. Ali Bucks जो है शहनाई को प्ले किया करते थे, and Bismillah would sit captivated for hours on end, और वहां पर घंटों बैठे रहते थे. Captivated means capture हो जाना, मोहित हो जाना, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, captivate हो जाते थे. आवर्स फॉर आवर्स ऑन एंड, और वहां पर जो है घंटों तक बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, और धीरे धीरे जो है उसने लेसन्स को लेना सीखना शुरू कर दिया. लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन जो है वो प्रैक्टिस करते रहते थे, बैठे रहते थे थ्रू आउट द डे. पूरा दिन लेसन जो लेते थे उनकी प्रैक्टिस करते रहते थे. For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya. For years कई सालों तक तो जो है to come the temple वो आते बालाजी के टेम्पल में और मंगला मैया के टेम्पल में. And the banks of the Ganga, और गंगा नदी के किनारे पर, became the young apprentices favorite haunts. Apprentice means students. Children, any one of you has any problem can raise hand. Let me just find out whether we have any problem so that we can justify the things. Can try to correct the points. Basically, I think there is a internet problem which is creating disturbance. There is a disturbance, I think. Sahil raised hand. Sound of was creating problem, I think. Are you getting sound properly? Sure. It's okay, students. Now it's confirmed that it's going good enough. Sound is clear. Network problem was there. Net was disconnected actually. Well, it's okay. Now it's all back. Let's continue. Balaji and Mangla Maya. Balaji, it happened now just. Okay.
Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga became the young apprentices. Favorite haunts. Apprentices means I told you where we practice after learning theoretical things or theoretical study. And favorite haunts. Haunt means a particular place where we go and devote our most of the time. Maximum समय जब हम जहाँ पर बिताते हैं, there that we call haunts basically. So इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर वो जाते थे वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, इंडिविजुअल, अकेले जो है वहां पर वो प्रैक्टिस कर सकते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. द फ्लोइंग वाटर, गंगा का जो बहता हुआ पानी था वो उसको इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था हिम टू इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज मीन्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंट राग्स. और राग्स को इन्वेंट करना, कि वो जो है राग्स को इन्वेंट कर पाए, इन्वेंट कर दें. that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. जिन राग्स को इस तरह से कंसीडर किया गया था कि जिनको जो है शहनाई के जरिए प्ले नहीं किया जा सकता है. कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड मीन्स प्रे, कि these were not supposed to be played with शहनाई, कि शहनाई के साथ जो है जिसको प्ले नहीं किया जा सकता है. Dear children, we are reading Ustad Bismillah Khan. You have read so many points by now so far, like how he started, how he learned, what sort of things he did, Bharat Ratna award he got, and how he started learning, where he started learning at his uncle's house in Banaras, Bismillah Khan. Now, what we are finding that he gives his particular time, students, this is very important point. In fifth point we are getting apprentice, जहां पर वो अकेले जाता था, फेवरेट हॉन्ट था उसका, और ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, अकेले में अलोन वो जो है वहां पर प्रैक्टिस किया करता था सॉलिट्यूड, इंडिविजुअली, गंगा पर बैठ करके. द फ्लोइंग वाटर्स, गंगा का जो वाटर था, आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आई वांट यू पीपल टू कंसीडर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. When the one wants to become perfect in anything, the one requires to put a lot of effort. This is what we are learning or reading the chapter, students. The ultimate purpose of this chapter is to let us know how to be perfected in anything we wish to be, and we can manage the things, right? So how he used to practice their students. The flowing waters of the Ganga, वो उसको इंस्पायर किया करता था, him to improvise and invent rags, कि भी वो इसको इम्प्रोवाइज कर सके, इम्प्रूव कर सके, राग्स जो है उनको डेवलप कर सके. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि शहनाई की रेंज से जिसको बिल्कुल अलग माना जाता था. पीपल यूज टू थिंक दैट वाज नॉट सपोज टू बी लाइक वी कैन से प्लेड विद द शहनाई, कि उसको शहनाई के जरिए जो है नहीं बजाया जा सकता है. So this was the problem beyond. So what happened? Bismillah Khan created the sensation and got this Shehnai on the classical platform. Right, everyone? Khushi is raising hand. Let me just see. I'll try myself, if possible, so that you can ask a question. Khushi, I'm going to unmute you. Yes. Sir, by mistake. By mistake. Sir, by mistake. Beta, don't do this. It creates disturbance. It's okay. Now, see children, what we did, we were learning about Bismillah Khan. Now we are going at the second paragraph. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अब बिस्मिल्लाह खान जो है अपने अंकल को कंपनी देते हैं, उनके साथ कंपनी में जो है उनकी कंपनी में उनके साथ इलाहाबाद की एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. देन एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल मींस अब
अपने अंकल के साथ जब वो कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पर उन्होंने अपनी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो प्ले करते थे, उनको उन्होंने प्ले किया. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट एट द कॉन्फ्रेंस. बेसिकली एट द एंड ऑफ द हिज रिसाइटल, प्ले करने के बाद जो है उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक. पैट मीन्स स्टूडेंट्स, थपथपाना, यानी कि उसकी पीठ को थपथपाया. उस्ताद फैज खान जो है वहां पर जो है गेस्ट थे इन दैट कॉन्फ्रेंस, एंड ही पैटेड द यंग बॉयज बैक. उस यंग बॉय की बैक को उन्होंने थपथपाया और उनको शाबाशी दी. उनको शाबाशी क्या दी, उनको क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कि आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो. आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, यू शैल मेक इट. अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट, इट्स अ प्रोवर्ब और अ फ्रेज टाइप थिंग्स. इन दैट व्हाट द स्पीकर इज सेइंग कि आप मेहनत करो, यू शैल मेक इट. तुम इसको अच्छे से कर पाओगे, यू विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे देन यूजुअल. कर सकते हो, कर लोगे. The one is saying this. Ustad Faisal Khan packed and said this to Bismillah Khan basically. With the opening of All India Radio in Lucknow. और जब ऑल इंडिया रेडियो को उदय हुआ, ऑल इंडिया रेडियो को स्टार्ट किया गया लखनऊ से in 1938, which started in 1938, came बिस्मिल्लाह's big break. और बिस्मिल्लाह को जो है वहां पर बहुत ही बड़ा चांस मिला, ब्रेक मिला, to come forward, to come in front of the people, right? Now, Bismillah's big break, he soon became an often heard Shehnai player on radio. और बिस्मिल्लाह खान को जो है रेडियो पर सुना जाने लगा. People started listening him on the radio. He became very famous all over India, across India. He became famous. He was heard by the people. People started hearing him on All India Radio, and that made him very famous. So, dear children, that's enough for today. By now, we will read this only. Next, we'll do the pending part in the next lecture.